Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Davar Zahid and welcome to another video, and this is going to be the first video of the nervous system, and also this chapter is also called coordination and control, so don't be confused, this is the same chapter called coordination plus control. Okay, it's a really fun topic if you ask me, this is one of my favorite topics. So and in this video we'll be talking about different receptors, neuron types, and also like an overview of how the neuron is really structured. Okay, and it's going to be a really fun and interesting video for you all. Let's get started. Alright guys, so talking about different types of receptors, this is pretty simple, right? Just think of all the different stimuli that we feel. So there's going to be chemoreceptors सबसे पहले, these are specifically going to be present on our tongue. Okay, so there's chemoreceptors के बाद हमारे पास mechanoreceptors होते हैं, ये हमारे पास free nerve endings होती हैं, which are essentially able to detect stuff like pressure, और इसके बाद फिर हमारे पास pressure हो गई, expanded tip endings भी कहते हैं, stray endings भी कहते हैं, and then we have photoreceptors. Photoreceptors are going to be, अच्छा ये मैं लिख देता हूँ because this is widely tested, it's going to be rods and cones, and you guys should remember what each of these did. Okay, so now moving on, the fourth one is going to be pretty simple, thermoreceptors, temperature के लिए, and then lastly we will be having our nociceptors, and guys, nociceptors are responsible for pain. Okay, and just one small thing that I wanted to tell you guys, I think I should maybe write this, it's not really tested a lot in, it can be tested in your MDCAT, because MDCAT में ना कभी कभार कुछ तरह की like बहुत advanced चीज़ें पूछ लेते हैं. Okay, so basically fast pain and temperature is carried together. Okay, that is all that you need to know. आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि spine में there's different tracts leading to the brainstem, वहाँ पे decusation हो रही होती है, they're forming pyramids, blah blah blah. अभी के लिए this is all that I want you guys to know. Okay, fast pain and temperature is going to be carried together, and slow pain is carried separately. This is all, and ये मैंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके बताया. अच्छा, nociceptor sensation of pain का बता रहे होते हैं, and that's pretty much it. Okay guys, now let's talk about the entire different types of neurons that we have. Okay guys, so before I talk about the neuron structure, I want to talk to you guys about two things. एक हमारे पास ना, we say that these are the primary cells of the CNS. Primary cells of the nervous system, I would say, the nervous system. And then we say that these are the supporting cell, और उनको कुछ sources में even call it the secondary cells, supporting cells of nervous system. Okay guys, primary cells से we basically mean neurons. And neurons की कितनी different types होती हैं? We have motor neurons, then we have our sensory neurons, and in between we have our relay neurons. Okay, अच्छा, supporting cells में there's only two that I want you guys to know. So there's Schwann cells, and there is something called oligodendrocytes. Okay, all that I want you to know is that Schwann cells are going to be myelinating cells of the peripheral nervous system, and oligodendrocytes are going to be myelinating cells of the central nervous system. Okay, that is all that it means. ये myelination करवा रहे होते हैं. Specifically, अगर मैं कहूँ कि अच्छा there's this sciatic nerve, let's say, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो sciatic nerve है वो हमारे पास, is it myelinated by the oligodendrocytes or by the Schwann cells? You guys will say by Schwann cells. वो आपकी टांग में basically responsible होती है for innervation and stuff. If I say कि okay, there's a neuron that is present in your brain, is it by Schwann cell or is it by oligodendrocytes? You guys should know कि it's by oligodendrocytes. That's all. इसके ज़्यादा कुछ लोग पढ़ लेते हैं इनके differences, but honestly I did not do them, and I only did them recently when I was doing my neurosciences module. Anyways, so this is just an overview that I wanted to give you guys. अच्छा, अब मैंने ना इसके साथ, before we just move on to the structure, I want to talk to you guys about some specific things from exam point of view. So यार जो neuron cell body होती है ना, they have a lot of different terms for the same thing. This has been called the soma, the cyton, and इसको हम लोग perikaryon भी कहते हैं. तो if there is इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आए, समझ लो it's pretty much the same thing. Okay, one thing that I want you to know कि हमारे पास ना centrioles नहीं होते यहाँ पे. We don't have centrioles in the neuron cell body. उसके अलावा pretty much सारे हमारे पास
न्यूरॉन्स होते हैं, सारे हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव निसल्स ग्रैन्यूल्स। ओके, व्हाट आर निसल्स ग्रैन्यूल्स? गाइस, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर एसेंशियली हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, प्लस वी आर गोइंग टू बी हैविंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस वी आर गोइंग टू बी हैविंग गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। और ये सारे मिलके हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग प्रोटीन्स ऑब्वियसली, and if you want to be a bit more specific, acetylcholine forming enzymes, तो ये सारे मिलके बना रहे होते हैं, ठीक है, प्रीकर्सर्स कहते हैं। ऑलराइट, ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ गाइस, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस इज अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड न्यूरोनल regeneration. Okay, ऑलराइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर सिलेबस एंड अभी तक बेसिकली हमारे पास जो श्वान सेल से माइलिनेटेड होता है, दैट इज द ओनली वन दैट कैन बी रीजनरेटेड। तो इफ आई आस्क यू गाइस कि कैन, लेट्स से आई हैड अ स्ट्रोक, मेरे दिमाग का एक पार्ट उड़ गया है, ठीक है, कैन इट बी रीजनरेटेड? नो, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। वाई? बिकॉज वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, वहाँ पे श्वान सेल्स नहीं होते, ठीक है। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल श्वान सेल होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल आई नीड टू हैव माई, sorry, I'll start it using pink. एक second, you have to be really specific about colors. The cell body or the perikaryon or the soma or the cyton, same thing for different words for the same thing. This has to be intact. अगर ये हो चुकी हुई है तो then we can't regenerate. So what do I mean by this? ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, let's draw a leg. Okay, let's say ये leg इस तरह करके हम एक्सटेंड करें, okay. Let's say this is the spine, let's say, and ऐसे करके it's forming the brain. My drawing is really bad. ये हमारे पास cerebellum बैठा हुआ है, ठीक है। और ओके, सो दिस मैंने सिर्फ लाइक टांग ड्रॉ की, ठीक है। अच्छा, अब गाइस लेट्स लुक एट इट दिस वे। व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास ना, लेट्स से कि वी हैव अ सेंसरी न्यूरॉन, ओके। सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी is over here. It's sending, it's essentially taking impulses, innervation from this place, okay. Cell body उसकी यहाँ पे पड़ी है और वो जा यहाँ पे रहे, ठीक है। If let's say I have an injury over here, or let's say I have an injury over here, you will have regeneration, ठीक है। हम regeneration करवा सकते हैं provided that हमारे पास Schwann cells हों, ठीक है। And इसके साथ साथ अगर इंजरी यहाँ पे होती है, विल देयर बी रीजनरेशन? देयर विल बी नो रीजनरेशन, ठीक है। तो दिस इज, इसकी ये चीज़ होती है कि इफ़ लेट्स से देयर इज समवन हु हैज़ अ न्यूरोपैथी बेसिकली मीन्स कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट हो रहे हैं। लेट्स से देयर इज डायबिटिक न्यूरोपैथी, आप लोगों ने सुना होगा कि जी जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके जी पाँव ऐसे ऐसा ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ख़त्म इन द सेंस कि दे लूज सेंस ऑफ फीलिंग इन देयर फीट। क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली ब्लड में आपके पास शुगर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि इट ग्रेजुअली डीजनरेट्स द एक्सॉन्स, ठीक है। स्पेसिफिकली एक ट्रांसपोर्ट टाइप होती है एक्सॉन्स में, उसको डीजनरेट करता है, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल। एसेंशियली होता है कि दे डीजनरेट, ठीक है। अब गाइस लेट्स से कि मेरे पास इतनी डीजनरेशन नहीं हुई कि मेरे न्यूरॉन सेल बॉडीज इंटैक्ट हैं और मैंने अब अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू विच आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज एंड आंसर। विल आई बी एबल टू रिवर्स my diabetic neuropathy or not? The answer is yes, I can, ठीक है। कि अगर मैं डाइट से कर लेता हूँ, the amount of sugar in my blood goes down, I will be able to reverse it because my neuron will be able to regenerate. So guys, what are the two things that we need? A, we need Schwann cells, ठीक है। By only one, I don't mean कि Schwann cells are the only thing that can be regenerated. I mean कि Schwann cells की जो myelinated neurons होते हैं, they are the only neurons that can be regenerated. यहाँ पे कोई न्यूरॉन बैठा होगा, यहाँ पे कोई न्यूरॉन बैठा होगा, यहाँ पे कोई न्यूरॉन बैठा होगा, वो रीजनरेट नहीं हो सकता। स्ट्रोक होगा तो वो पक्का जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो श्वान सेल्स की बात कर ली, सेल बॉडीज की बात कर ली, ओके। वन लास्ट थिंग, ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल इन न्यूरोनल रीजनरेशन। इट्स समथिंग दैट आई पर्सनली फाइंड रियली फैसिनेटिंग, बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कीप दिस relevant to you guys, okay. The thing that I want to talk about is that guys, this process is still going to be, just a second, it's going to be super slow, okay. I don't remember the exact numbers, neither do you need to know them, लेकिन it's, I believe it's approximately 1 or 2 millimeters a day, ठीक है।
तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट हो जाती है, ठीक है। सो न्यूरोनल रीजनरेशन, वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इतनी सी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, सेल बॉडी कैन नॉट बी रीजनरेटेड, सेल बॉडी हैज़ टू बी इंटैक्ट, द एक्सॉन्स द फाइबर्स कैन बी रीजनरेटेड, एक्सॉन को हम रीजनरेट कर सकते हैं, डेंड्राइट्स को हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम लोगों ने न्यूरोनल सेल बॉडी ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है। अच्छा, let's come here. I wanted to just quickly show a few things to you guys and let's talk. Alright guys, so first of all I'll be showing things to you guys over here और फिर मैं इनके बारे में बात करूँगा। अच्छा, first of all I want you guys to know कि न्यूरॉन्स की ना डिफरेंट टाइप्स, इवन ये समझ लो कि हमने इनको अरेंज किया हुआ है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। आई टॉक मोर अबाउट दिस इन अ मिनट। बट हमारे सिलेबस में जब वो हमसे पूछेंगे तो दे विल ओनली बी यूजिंग दिस डायग्राम, ओके, दिस इज द डायग्राम दैट दे विल बी यूजिंग। आई विल एक्सप्लेन दिस, ओके। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सॉन, ठीक है। लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर और यहाँ पे करके चलो हम एक्सॉन की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, एक्सॉन एज यू ऑल नो इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द न्यूरोनल सेल बॉडी, ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर अवे। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है। जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है ना, वी कॉल इट एन एक्सोप्लाज्म, ठीक है। जो एक्सॉन का सेल मेम्ब्रेन होता है वी कॉल इट अ एक्सोलेमा, ठीक है। ऑलराइट, हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अच्छा, we can have some organelles, that is all you need to know. ये भी नहीं कि कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं कौन से ऑर्गेनल्स नहीं होते, बस एक चीज़ कर लो, स्पेलिंग्स दोबारा मेरे ख़राब में, बट एनीवेज ओके। एक चीज़ बस याद रखो कि निसल्स ग्रैन्यूल्स आर नॉट नीडेड, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट हियर, ओके गाइस। एक छोटा सा मेरा सवाल है, आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अ क्लिनिकल कोरिलेट, ठीक है। मैं इसके बारे में और अपनी लाइव क्लासेस में बात करूँगा। आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम यू, इफ आई डोंट हैव निसल ग्रैन्यूल्स, इफ द निसल ग्रैन्यूल्स आर ओनली प्रेजेंट हियर, what is going to be bringing the Nissl granules all the way here? What will be bringing the Nissl granules all the way from the cell body यहाँ से होते थे? So we basically have enterogate transport systems, ठीक है, which are made up of cytoskeleton के कुछ components होते हैं वो। And guys, if those components are destroyed, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बने जा रहे बट यहाँ पे ट्रेन नहीं है जो उसको इधर लेकर आए, तो बिकॉज ऑफ दैट we can essentially have certain neurodegenerative conditions, ठीक है। So just keep this correlate in your brain, okay. So we've talked about that, and again you guys can see Schwann cells are myelinated, ठीक है। Schwann cells pretty much peripheral nervous system में तो सारे ही myelinated होते हैं, तो we've talked about that, ठीक है। अच्छा, तो okay, so moving on, let's just look at dendrites, ठीक है। Dendrites are just these things, they're spiny looking, ठीक है, they're thin branched, and that's pretty much it. इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। And I guess that's pretty much it for the structure, ठीक है। Okay, so we've talked about the structure. Okay, one thing that I forgot to mention, I think, हाँ, ये जो supporting cells होते हैं ना guys, इनका एक और छोटा सा नाम है। Again, they you know in your MDCAT they love to just आपको तंग करने का उन्हें शौक होता है, सेम चीज़ों के डिफरेंट नाम रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको if they say a neuroglial cell, it is the same thing as a supporting cell of the nervous system. It's just a different word for it, all right? बात वही हो रही है। Okay guys, अब ना मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है, then let's move on to different neuron types, ठीक है। जो न्यूरॉन्स है ना, मैं उनको डिवाइड कर सकता हूँ on the basis of three things. One, their location. For example, I can say कि oh this is a neuron of the peripheral nervous system. I can say oh this is a neuron of the central nervous system, ठीक है। Central nervous system, by central nervous system I mean the brain and the spinal cord, okay. And by my peripheral nervous system I mean everything outside it. All the neurons outside the CNS are going to be called the peripheral nervous system, ठीक है। चाहे वो मेरे पाँव का न्यूरॉन हो, चाहे वो एक सेंसरी न्यूरॉन हो, वट एवर इट इज, आई डोंट केयर, इट्स ऑल गोइंग टू बी कॉल्ड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, ओके गाइस। अ क्विक क्वेश्चन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड बाय Schwann cells and central nervous system is myelinated by oligodendrocytes, okay। अच्छा, so ये हम लोगों ने पहली ब्रेक डाउन कर लिया। अच्छा, सेकेंड इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ओके गाइस। फंक्शन की बेसिस पे आई हैव थ्री ब्रेकडाउन्स, ठीक है, थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है।
which is going to be supplying innervation to muscles, ठीक है. So innervation to muscles, कि वो muscles को बता रहा होगा कि okay do this or do that. Okay, then I have a relay neuron. अच्छा, इसे relay neuron भी कहते हैं, इसको interneuron भी कहते हैं. And along with that, let me just there's another word for it, it's just skipping my mind. Let me check. Okay, it's also called an associative neuron. Associative neuron. Okay. और ये करता है कि it basically connects sensory or motor neurons, ठीक है. तो it's a connection. Let's just write it here. It is going to be a connection. अच्छा. And then lastly, guys, I'm going to be having my beautiful sensory neurons, which are responsible for me seeing the beautiful world and just feeling things, ठीक है. तो this is responsible for all sensations, ठीक है, all the different types of sensations, ठीक है. अब ये मेरी सेकंड वो आ गया ब्रेकडाउन. नाउ द थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है गाइज. अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बेसिस पे ना दिस इज एसेंशियली डन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेल बॉडी एंड फाइबर्स, ठीक है, कि उसके फाइबर्स किस तरह के हैं एंड फाइबर्स. ओके गाइज, ये क्या होता है? दिस इज़ गोइंग टू बी, एंड प्लीज़ ये ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस. इट्स गोइंग टू बी यूनिपोलर. अभी मैं सारा दिखाऊंगा, ओके, डोंट वरी. इट्स गोइंग टू बी ओके, सो फर्स्ट यूनिपोलर, देन इट कुड बी बाइपोलर, then it could be pseudo unipolar, which is sensory neuron specifically. Okay, and then it can be multipolar, ठीक है. Okay guys, पोल का मतलब क्या? पोल का मतलब होता है पोल्स, राइट, कि उसके डिफरेंट पोल्स क्या मौजूद हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट लुक एट दैट. ओके, अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, लुकिंग एट द डिफरेंट पोल्स ऑफ इट. ओके गाइस, ये देखो यूनिपोलर, कि ये एक पोल में पड़ा हुआ है और वहाँ से एक इसका फाइबर बंडल जा रहा है. डोंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स एनी मोर. एक्सॉन डेंड्राइट्स की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है. अब आपने एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स को ना एक कलेक्टिव वर्ड से पहचानना है, दैट इज़ फाइबर्स, कि वो फाइबर्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है. बाइपोलर में क्या कि द न्यूरॉन इज़ इन द मिडल, यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है. तो वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन. ये कितनी थी? दिस इज़ वन डायरेक्शन. ओके, सो व्हाट इज़ स्यूडो यूनिपोलर देन, ठीक है. एक सेकेंड, just give me 1 second. I think we might have made a small mistake. No, we have not. Okay, so guys, talking about pseudo unipolar. Pseudo unipolar का क्या मतलब होता है? Pseudo means fake unipolar. Okay, listen, cell body एक निकल रहा है, it looks like one, right, but then it divides into two, तो it's a fake single pole. Okay, कि यहाँ से लगता है सिंगल होगा, लेकिन then जाके दो बना लेते हैं. Okay, and then by multipolar, देयर इज द सेल बॉडी, यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फाइबर्स, ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो इट बेसिकली इज़ लाइक दैट. ओके, द मैक्सिमम दैट दे कैन डू इज़ गिव यू अ पिक्चर ऑफ दिस, लाइक दिस एग्जैक्ट सेम डायग्राम, एंड आस्क यू टू आइडेंटिफाई. ओके, आस्क यू टू आइडेंटिफाई. सो प्लीज़ मेक श्योर आपको ये आता हो. इतना नहीं वो करेंगे कि आपसे इनकी स्पेसिफिक चीज़ें पूछें कि अच्छा कौन से फाइबर्स हैं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, इतनी डिटेल में वो नहीं जाएंगे. ओके गाइज, now let's move on to the second portion of this video, which is going to be talking about sensory neurons, relay neurons and motor neurons in more detail. Okay guys, talking about sensory neurons, ठीक है. अच्छा, first of all हमारे पास ना some books also call them efferent neurons. Guys, efferent का क्या मतलब होता है? Efferent का मतलब होता है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, ठीक है. It means कि ये, listen to this, it is carrying sensation, carefully listen, sensation आ रही है from peripheral nervous system to central nervous system, ठीक है. किस क्या कर रहा है मेरा सेंसरी न्यूरॉन? मैंने एक ठंडे ग्लास को हाथ लगाया है, तो माई रिसेप्टर्स, स्पेसिफिकली मेरे जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, दे आर डिटेक्टिंग कि ओ दिस ग्लास इज कोल्ड, देन इट्स कैरिंग द सेंसेशन ऑफ द कोल्ड ग्लास from my fingers all the way to my brain. Okay, so sensation आ रही है, we call them efferent arterioles. Okay, all right guys. अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि ये होते हैं pseudo unipolar. If you guys want me to explain why they're pseudo unipolar, I'll explain it जल्दी से. Essentially ये sensory receptors हैं, ठीक है, यहाँ से सारी sensations आ रही हैं इधर,
ठीक है, इधर आ रही हैं sensations. Then this is sending it to the brain. This is sending it to the brain. Let me use a smaller वो, ये भेज रहा है brain में, यहाँ से आ रही हैं body से, ठीक है. And this is generally outside the spinal cord. Okay, this is generally outside the spinal cord. Okay, so ये हमारे पास ये बात आ गई. Okay, so guys, these are sensory neurons को हम लोग कहते हैं कि these are going to be having just a second. Okay, so just one second. Okay, so we say कि इनका जो एक्सॉन होता है, अच्छा यार ये ना थोड़ा सा, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस थिंग. दिस इज़ व्हाट आई रियली हेट अबाउट AKU, MDCAT और ये सारे एग्जाम्स के, ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जाते कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी डिटेल में जाके आप लोगों का कॉन्सेप्ट बना दूँ, ठीक है. अच्छा, मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है. मेरे पास होता क्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. इतनी डिटेल, दिस माइट बी अ बिट मोर डिटेल, बट द थिंग इज़ आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी. यू वॉन्ट बी एबल टू, यू वॉन्ट हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स. दिस इज द ब्रेन, दिस इज द cerebellum, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ओके गाइस, अब प्लीज लिसन टू मी, व्हाट इज हैपनिंग. ये हमारा ना स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन पड़ा हुआ है. दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, सॉरी, दिस इज हाउ इट इज गोइंग. इट इज कैरिंग सेंसेशन यहाँ से, ठीक है. सेंसेशन यहाँ सेल बॉडी में आ रही है, एंड देन इट इज गोइंग ऑल द वे ऊपर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. ऑलराइट गाइस, अब मेरी बात सुनो. इफ आई आस्क यू गाइस, एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. इट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. तो गाइज, इफ आई आस्क यू कि इसके एक्सॉन की क्या पोजिशन है, तो इज द एक्सॉन गोइंग टू बी इनसाइड और इज द एक्सॉन गोइंग टू बी आउटसाइड? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कि जो इनका एक्सॉन होता है, सो देयर इज द एक्सॉन. एक्सॉन इज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपनी सेल बॉडी की, प्लस मैं अपनी एफरेंट फाइबर्स की बात करूँ, आई एक्सप्लेन व्हाट एफरेंट फाइबर्स आर. ओके, मैं 2 मिनट में समझाता हूँ. These are outside central nervous system, in the outside CNS, and these are specifically going to be in the peripheral nervous system. Okay, what are efferent fibers? Guys, देखो, dendrite क्या होता है? ये, ठीक है. Does this really look like a dendrite to you? It doesn't, right? So we basically use the word efferent fiber for it. Efferent fiber. एंड कुछ बेसिक किताबों में दे इवन कॉल इट अ डेंड्राइट, ठीक है. तो अगर आपकी किताबों में लिखा हुआ जी डेंड्राइट्स आर आउटसाइड, तो दैट प्रीटी मच ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. ओके, दैट प्रीटी मच ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, हम लोगों ने, अच्छा एक सेकेंड, सो वी टॉक्ड अबाउट एक्सॉन, वी टॉक्ड अबाउट सूडो यूनिपोलर, ठीक है. अच्छा, अब वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इज दैट हमारे पास ना इनसाइड दीज थिंग्स व्हाट वी हैव इज how to explain this? I'm just thinking because there's a lot of content over here and I'm trying to make it as logical and as straightforward as I can. Okay guys, अच्छा, यहाँ पे the last thing that I want to tell you guys is कि they generally have, I think let's just keep this for now and I think इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके build करूँगा because I'm afraid अगर मैं concept आपको अभी समझा दूँ, you guys will get a bit overloaded. Let's move on to relay neurons. Okay, okay guys. अच्छा, so talking about relay neurons, these neurons are going to be bipolar. ठीक है, again let's go at our diagram and let's look at this. Why is it bipolar? It is bipolar because यहाँ से वो ले रहा है let's say sensory neuron से, यहाँ let's say वो भेज रहा है motor neuron. That is all you need to know. That is why it is bipolar. ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली. These do not have any true dendrites. No true dendrites in most cases. Okay, in most cases we do not have any true dendrites. ठीक है, and the relay neurons because ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है, they don't need any myelination, so they are non-myelinated for the most part. Again guys, बहुत exceptions होते हैं neurosciences के अंदर. This is the level that you need to know right now. I don't want anyone coming up to me 2 years later when inshallah you are at your doing your neurosciences module and being like कि आपने तो गलत पढ़ाया था. Limited information भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है. Okay, and guys, this is present
only in the central nervous system. Okay, only in the central nervous system. Acha, relay neurons, this is all that you need to know. Let's talk about our beautiful motor neurons now. Okay, acha, so motor neurons, let's just go over here. Yeah, I think this is going to be all over the place. Let's just come over here and do motor neurons here. Okay guys, what do I mean by motor neurons? तो motor neurons specifically are neurons जो कि हमारे पास मसल्स को वो कर रहे होते हैं, सॉरी इनोवेट कर रहे होते हैं, राइट? अच्छा, सो दीज आर गोइंग टू बी मल्टीपोलर. ठीक है, ये हमारा वो स्पेसिफिक न्यूरॉन होता है जिसको हम देखते हैं. ये देख रहे हो, ये दिस वन, नाउ यू गाइस विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज अ मल्टीपोलर वन. ओके, देख रहे हो, मल्टीपोलर वन. ठीक है, दिस इज अ मल्टीपोलर वन एंड इट इज गोइंग टू बी हैविंग व्हाट वी कॉल ट्रू डेंड्राइट्स. गाइस, ये बात अब अंडरस्टैंड करनी, याद नहीं करनी. ठीक है, क्यों होते हैं ट्रू डेंड्राइट्स? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी इनोवेटेड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. कि जी एक मसल जो है मेरा, वो एक एक जो स्पेसिफिक मसल के पास फाइबर जा रहा है. लेट्स से दिस इज गोइंग स्पेसिफिकली टू माई व्हाट डू वी कॉल इट, बाइसेप्स. ठीक है, मेरे बाइसेप्स प्रियंका के पास जा रहे हैं. ठीक है, तो इट नीड्स टू बी एबल टू हैव, लेट्स से देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स that can send impulse to this neuron to make the biceps move. ठीक है, for example I can move the biceps. जो मेरा let's say I'm just scared एकदम से, ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्सिवली मूव कर सकता हूँ. then let's say I want to move it जान के, ठीक है, कोई चीज़ करने के लिए करना चाहता हूँ मूव. ठीक है, so a lot of different reasons. ठीक है, तो डेंड्राइट्स मेरे पास बहुत डिफरेंट न्यूरॉन्स. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दे कनेक्टिंग मी. डेंड्राइट से इम्पल्स आ रही होती है. ठीक है, तो आई कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट इम्पल्सेस कमिंग. ठीक है, ओके गाइस, लेकिन मैं जाऊंगा कितने न्यूरॉन्स के पास? न्यूरॉन बॉडीज के मैं जाऊंगा कितने मसल्स के पास? सिर्फ एक मसल के पास. ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन सिर्फ एक मसल को इनोवेट कर रहा होता है, पूरे मसल को नहीं करता इनोवेट. इट्स गोइंग टू बी इनोवेटिंग अ सिंगल मोटर न्यूरॉन, मोटर यूनिट, बट मोर ऑन दैट लेटर. ठीक है, ओके, ट्रू डेंड्राइट्स. ठीक है, वन लॉन्ग एक्सॉन प्रेजेंट एंड इसके साथ साथ गाइस दिस इज हेविली माइलिनेटेड. ठीक है, सो देयर इज माइलिनेशन हियर, माइलिनेटेड. और गाइस, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दिस केस is the axon going to be outside or is the axon going to be inside? So guys, in this case, if we just quickly take this diagram over here and we try and look at this diagram, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास, just give me 1 minute. Okay, so guys, now over here look, I'm sorry this looks half eaten, लेकिन this is the central nervous system. So now what is happening is कि हमारे जो मोटर न्यूरॉन की बॉडी होती है, ठीक है, द मोटर न्यूरॉन्स बॉडी इट्स प्रीटी मच गोइंग टू बी ओवर हियर सम प्लेस. ठीक है, अच्छा, अब प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना आपने अंडरस्टैंड करना है. थोड़ी मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इट इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल, बट प्लीज़. ये मेरे पास एक न्यूरोनल सेल बॉडी बैठी हुई है. ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं और ब्रेन मुझे ऊपर से इम्पल्स भेज रहा है एंड देन दिस इम्पल्स गाइस इज गोइंग टू बी कैरीड आउट ऑल द वे आउट. नाउ इफ आई आस्क यू गाइस, axon किधर है इसका? You guys should be able to answer it. Where is the axon going to be? The axon, the cell body, and the dendrites. Okay, guys. The axon is going to be outside, so it's going to be a part of the peripheral nervous system. The cell body and the dendrites are going to be a part of the central nervous system or inside the spinal cord. Okay, guys. So this is what we have for our first video. In the next video, we are inshallah going to be talking about different synapses. I'll be talking to you guys about, maybe synapses, maybe the entire polarized thing. But khair, hope to see you guys in the future videos. Thank you so much for watching this video and Allah Hafiz.